इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको हम कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हम क्या है कि हमने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट ये देखा कि स्कैन किया, इसमें अगर सिम्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, नॉन सिम्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, इंट्राओरल साइंस एंड सिम्टम हो सकते हैं, एक्स्ट्राओरल सिम्टम हो सकते हैं। क्योंकि दांत हिट स्लाइड ऑक्लूजन में है, हिट स्लाइड ऑक्लूजन में दांत घिस जाते हैं। तो ये दांत आप देखोगे तो दे आर बोन टीथ, इसमें एनामल नहीं है, इसमें एनामल नहीं है, इसमें एनामल नहीं है, इसमें एनामल नहीं है। सो देयर मल्टीपल बोन टीथ, है ना। और आप देखोगे तो कैनाइन टिप नहीं है, टिप नहीं है। सो जब कैनाइन टिप नहीं होती है तो मल्टीपल टीथ वेयर अनइक्वली। तो ये कैनाइन बिल्कुल फ्लैट है, जबकि कैनाइन होता है ऐसे है। तो कैनाइन टिप नहीं होगी, अर्लीस्ट इंडिकेशन की जॉ टिल्ट हो गया और स्लाइड हो गया। तो जब कैनाइन घिसेगा तो पीछे के दांत, posterior teeth will wear off faster. So you see there is no enamel in these yellow. Okay. Now अगर हम we see upper also the teeth will where you can see the where there are inside indentation here, indentation where unequal indentation, and this tooth went into root canal because of unequal load and hit and slide occlusion, जो कि नॉर्मल है। हम अब उसको जितना जल्दी ठीक कर देंगे उतना अच्छा, बिकॉज हिट एंड स्लाइड ऑक्लूजन एक नॉर्मल ऑक्लूजन है, वो अडेप्टिव बिहेवियर है जॉ का। तो या तो हम अडेप्टिव मीन्स जब दांत रप्ट होते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, बट दे आर नॉट बैलेंस्ड। मीन्स ऑल टीथ डू नॉट टच साइमल्टेनियसली, some teeth touch, some teeth do not touch simultaneously. There is a first point contact, it slides. The slide is less, but one of the tooth wears off, the slide becomes more. The canine is worn here, the slide becomes more. When the slide becomes more, the wear becomes more. So this once the wear becomes more, the slide becomes further more. The cycle continues, and then this goes into hit slide, and the teeth keep on wearing. So one of the tooth goes into root canal, देन अनदर गोज इनटू रूट कैनाल, और किसी में सिम्टम एक्स्ट्रा ओरल आ जाएंगे, जैसे कि जो लिंक में दिखे हुए हैं बहुत सारे सिम्टम, पहले 15 में 16 में सिम्टम्स हैं एक्स्ट्रा ओरल, और बाद के 20 इंट्रा ओरल साइन सिम्टम्स हैं। तो किसी को अंदर, किसी को दांत जॉ के अंदर, किसी को जॉ के बाहर, सिम्टम साइंस कॉम्बिनेशन क्या होगा वो अलग अलग है, वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है। जितना जल्दी ठीक कर देंगे, 15 से 20 साल में करेंगे तो 1-2 दांतों को ठीक करना होगा, 20 से 25 में करेंगे 2-3 दांतों को और ठीक करना पड़ सकता है। As the wear and the slide becomes more teeth have to be balanced. So this is not alignment, this is balancing. So balancing means we have to restore those teeth which are bone and balance the occlusion by distributing the pressure. Now the occlusal lock is gone. When the lock goes off, the slide becomes more, the enamel goes off, enamel becomes bone, the teeth wear 7 times faster. So इस केस में now इनके gums recede हो रहे थे, because if you see gums are receding, यहाँ होने चाहिए थे gums are, तो जो the pressure is transferred to teeth, they wear off, the gum and the bone recede or bone reduces, or it is transferred extra orally here on the TMJ and the associated muscles. So some people have symptoms of jaw joint clicking, pain in front of ear, then migraine, early morning headaches, chewing muscle soreness, while combing it becomes sensitive, then some people have tinnitus because the jaw muscles attached to jaw joint, they all become tender and the jaw adapts to new position. In a hit and slide occlusion, when the slide becomes more, the jaw adapts to new position. So we have to reduce the jaw slide or hit and slide as early as possible. But whenever you detect it, you do it. For treatment, if you want to prevention, it should be done as early as 20 years, before 20 years. Once teeth come into occlusion and they are not worn. So now I am going to tell you what. Now we saw one tooth is gone to root canal, or so we have 2 options. One is whatever we do at this occlusion, this is a current hit and slide adaptive behavior occlusion, we do treatment at this level. If we do treatment at this level, whichever goes into root canal, we'll do at root canal, and we will put our cover only at this level only, bone state.
मीन्स अगर मैं ऑनले भी लगाऊंगा तो घिसा हुआ ही लगाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू मेक ऑनले अकॉर्डिंग टू द लोअर टूथ। अगर लोअर टूथ का शेप ऐसा होता तो मैं ऑनले ऐसा लगाता, लेकिन क्योंकि लोअर टूथ का शेप ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो घिसा हुआ है, तो मुझे ऑनले भी ऐसा ही लगाना पड़ेगा, विच इज so I cannot create and balance of one tooth. I have to balance multiple teeth to bring it to a balance level. Now since either we do treatment at current level, whichever wears off we do the treatment, whichever becomes sensitive we do root canal, or we prevent it from going further into root canals by just restorative alignment. Restorative alignment means we restore them by either composite or ceramic. Composite में दांत को ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, कोई दांतों को रूट कनाल नहीं करना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि इसको हमने विष्णु बताया कि आइदर वी रेस्टोर द ऑपरेशन एट दिस स्टेज, जिसमें हम बाकी दांतों को किसी का रूट कनाल नहीं करेंगे और बस हम उनको बैलेंस कर देंगे. तो पेशेंट सेज यस आई डोंट वांट टू गेट अ रूट कनाल फॉर एनी ईयर, सो वी कैन रेस्टोर देम विदाउट डूइंग रूट कनाल, बैलेंस देम. हाउ डिड वी डू? वी जस्ट टेक आउट की दांत जॉ स्कैन किया, देखा कितने दांत घिसे हुए हैं, फिर डिसाइड देखा कि कौन से दांत घिसे तो हैं, कौन पड़ा है, साइड कितना है देख लिया. हमने ये देखा कि इतना स्लाइड हो चुका है, इतना ओरिजिनली इतना था बट इतना स्लाइड है, इतना स्लाइड चेक किया, डिविएशन चेक किया. उसके बाद हमने इसको डिजिटली बनाया, यहाँ से वेरी डिजिटली कि हमें उसको कितना घिसा था वो देख लिया, फिर हमने इसको बना दिया. नाउ डिजिटली अगर देखोगे तो हमने इतना जितना गैप था उसको डिजिटली बनाया एक एक दांत को. Now I'll show you how. Okay. Now if you see कि हमने इसको बनाया कैसे, हमने डिजिटली इसको चेक किया कि इतना स्लाइड है, इतना ठीक करने पे ये ऑक्लूजन बैलेंस हो जाता है. तो हमने इसको डिजिटली पहले करेक्टेड बाइट निकाली, उस करेक्टेड बाइट पर हमने उसको बनाया. अब अगर आप देखोगे तो हमने इसको यहाँ पर जितने पोर्शन पे हमें बनाना होगा उतना वाइट हो जाएगा वो. सी दिस नाउ इतने वाइट है, मीन्स हमने इतना इसको रीबिल्ड किया, तो हमने ऑक्लूजन को बैलेंस कर दिया. बैलेंस करने के लिए अभी तक हमने स्टेज पे कोई रूट कनाल नहीं करी है, कुछ नहीं किया. दिस इज डायग्नोस्टिक एंड कंफर्मेटरी फॉर पेशेंट की हमें इतना बना के हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना. वो हर पेशेंट का वेरिएबल है, कितने दांतों को बैलेंस करना पड़ता है वो वेरिएबल है, कौन से घिसे हैं वो वेरिएबल है, किसी को सिम्टम है, किसी को नॉन सिम्टम है, किसी को साइंस बहुत सारे हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. बट वी आर बैलेंस स्पेशलिस्ट, सो वी बैलेंस द ऑक्लूजन फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन एंड वी डोंट नो. सो दिस मच इज लोअर बिल्ड, उतना ही हमने कुछ दांतों को ऊपर का बिल्ड किया. हमने उतना ऊपर बिल्ड किया, इतना नीचे बिल्ड किया, जिसमें वाइट है उतना हम रीबिल्ड कर रहे हैं. और रीबिल्डिंग करते वक्त हम कोई दांत को ग्राइंड नहीं कर रहे, कोई रूट कैनाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एडिंग एंड कंपोजिट. फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कंपोजिट से करना है कि सेरेमिक से करना है. अगर हमें सेरेमिक से करना है तो दांत को ग्राइंड करना पड़ता है, अगर हम सेरेमिक से नहीं करते तो हम कंपोजिट से रीबिल्ड कर देते हैं. तो कंपोजिट इज बेटर बिकॉज कि हमने दांत को ना तो ग्राइंड किया, हमने रूट कैनाल करी और उसको रीबिल्ड कर दिया. तो हमने हर पोजीशन चेक कर लिया, उसकी इंटरफेरेंस चेक करते हैं. हमने इंटरफेरेंस चेक करी इस पेशेंट की, सारी इंटरफेरेंस चेक करने के बाद हमने कैनाइन गाइड ऑक्लूजन दिया, ऑक्लूजन पैरामीटर पर चेक किया. उसके बाद हमने इसको यहाँ चेक करने के बाद हमने इनको माउथ में ट्रांसफ़र कर दिया. माउथ में ट्रांसफ़र कर दिया और चेक कर लिया, बिना इस तरह तक हमने कोई रूट कैनाल नहीं करी है. अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने इनको चेक किया, माउथ में ट्रांसफ़र करने के बाद जितना पोर्शन आपको दिख रहा है वो ऐड है, वाइट वाला पोर्शन ऐड ऑन है. जो दांत घिसे हुए हैं वो कंसिडर करके उसको ऐड कर दिया. इतना अपनी समय खाली इतने ही ऐड किए हैं, यहाँ इतना ऐड किया, जस्ट इतना सा पोर्शन कैनाइन करके बनाया. तो हमें वो स्पेस को क्लोज करके हमने वो स्पेस को क्लोज किया और नीचे के में और ऊपर वाले में ये हमने इतना ऐड किया. इतना ऐड करने पे हमने फिर गाइडेंस चेक करी, सारी की सारी गाइडेंस चेक करी माउथ में, ओके आ गई, है ना. बैलेंस ऑपरेशन चेक कर लिया कि ओके आ गया. उसके बाद हम इसको माउथ में फिर ट्रांसफर करेंगे, या तो सेरेमिक से या कंपोजिट से, डिपेंडिंग अपॉन द एज, कॉस्ट, पेशेंट कंफर्मेशन, व्हाट पेशेंट वांट्स फॉर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सोल्यूशन. बट हम बैलेंस कर देंगे, इसमें एक भी रूट कनाल की जरूरत नहीं है. अब हमने क्या किया कि हमने इसको यहाँ देखा कि हमने बैलेंस करा,
तो हमने बैलेंस करने के लिए ये आपने देखा कि हमने इन दांतों को किया। ओरिजिनल दांत था ये, इतना स्पेस निकाला, इतना हमें स्पेस को बंद करने पे आप देखोगे तो इतना स्पेस को बंद करने पे हमें बैलेंस मिलता है। ये एक्चुअल पेशेंट का यहाँ से, और हमने इनको ये आज लगा के चेक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, है ना। तो हमने हाउ वी डू इज दिस कि हमने इसको हमने यहाँ तो ओरिजिनल है और इतना हमने ऐड किया तो बैलेंस हो गया ना। लोअर आप देखो तो इसको हमने इसको ऐसे यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा इस पर ऐड करा और वो बैलेंस हो गया। अब आप यहाँ ओरिजिनली मैं दिखाता हूँ आपको स्कैन पर कि ये इनकी बाइट है जो करेक्टेड बाइट है, इसमें स्पेस है। करेक्टेड बाइट में हमें स्पेस मिलती है ना, क्योंकि उतना घिसा हुआ है, तो इतना घिसा होगा हमें रीबिल्ड करना है। हमने डिजिटली बीच में रीबिल्ड किया था। आप देखोगे तो कैनाइन टिप यहाँ पर पूरा फ्लैट था, ये बिल्कुल फ्लैट था, और हमने इसको आप यहाँ देखो इस पोर्शन पे देखोगे तो कैनाइन टिप फ्लैट था, हमने इसको रीबिल्ड कर दिया और वो कैनाइन टिप बन गया। ये कैनाइन टिप बना दिया इतना, तो ये अपने जो लॉक हो गया ऐसे यहाँ पर हमने इन पे कुछ कस्ट टिप्स बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं, ये बनाए हैं। वो मल्टीपल पैरामीटर पे बनाया जाता है, माइक्रॉन्स और मिलीमीटर में है ये सब कुछ, बिकॉज हमें 32 दांतों को बैलेंस करना है। किसी का 28 है, किसी का 32 है, तो वी विल बी बैलेंसिंग ईच एंड एवरी टूथ। बैलेंसिंग मींस वी हैव टू ऐड, इट इज नॉट जस्ट अलाइनमेंट इज डिफरेंट। तो हमें बैलेंस करने पर स्लाइड उठ जाएगा। इफ यू सी दिस हियर, यहाँ पर हमने इन दांतों को इतना ऐड किया है, ये ओरिजिनल है। इफ यू सी दिस, और हमने यहाँ इसको इतना ऐड कर दिया, यहाँ इतना ऐड कर दिया। हर केस टू केस सिनेरियो अलग है, हर केस का वो अलग है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड करने पर वो बैलेंस पे आ जाएगा। इतना बैलेंस कर रहे हैं, है ना। दिस इज नोन एज रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। इसमें हमने दांतों को रेस्टोर करके अलाइन किया और बैलेंस कर दिया। दिस इज अ पेशेंट वाज इन सीवियर स्टेज, कुछ बहुत दांत घिस गए हैं, तो हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन बंद हो गया और रेस्टोरेटिव बैलेंसिंग है। इसमें इक्विलिब्रेट भी करेंगे, और उसको सिंस एडेप्टिव पोजीशन पर है तो हमने इसको जो आइडियल पोजीशन पे लाके उसको बना दिया, और हमें इस पे इसको इक्विलिब्रेट करना पड़ेगा। मीन्स हमें बैलेंस करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर हमें इसको डीप्रोग्राम भी करना पड़ेगा मसल्स, बिकॉज जॉ मसल्स उससे अडेप्ट हो चुकी हैं, और उनको उसी पोजीशन पे लाके हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। 2 साल तक स्टेबलाइज करेंगे तो जॉ स्लाइड होना बंद हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी डू occlusal rebalancing by composite restoration without doing any root canal, without grinding any tooth, and is balanced for future protection. उसके बाद जब जॉ का में प्रेशर बराबर हो जाएगा तो इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू एक्स्ट्रा ओरल जॉ जॉइंट्स, और गम रिसीड होना रुक जाते हैं। वेयर ऑफ फिर से धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट बहुत स्लो होगा, बिकॉज वी हैव बैलेंस्ड ऑक्लूजन, वी हैव गिवन ए म्यूचुअली प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन वेयर इनामल इज रिप्लेस्ड बाय कंपोजिट।